Assalamu alaikum and a warm welcome to all of you here in this today's English grammar class. So we were dealing with the um, second grammatical item, that is tense. In the previous lecture, I have told you in detail about the tense. What a tense is, we came to know that it is that part of a grammatical item which tells us about the time of an action. ठीक. After that, उसके साथ साथ मैंने आपको बताया, I have given few examples here. She plays tennis, he ate food, I work hard. तो मैंने आपको बताया कि जो वर्ब होता है सेंटेंस में, उसी की मदद से हमें पता चलता है कि what is the tense of the sentence. If there is a first form, then the tense of the sentence will be present. If second form, then the tense of the sentence will be past. If will or shall with the first form verb, then that will be the future tense. I have given examples here. He plays, first form, so it becomes present tense. Second, ate, it becomes past tense. Will work, it will be future tense. ठीक. उसके साथ साथ हमने पढ़ा था, we also came to know about the kinds of tenses. ठीक. So I told you there are usually three kinds of tenses: the present tense, past tense and the future tense. ठीक. There are usually three kinds of tenses: present tense, past tense and future tense. After that, we also read about present tense in detail. Then we came to know about present tense. It's further are four kinds. It has subtypes, subkinds. I told you the first one is simple present tense or present indefinite. Number second is present continuous tense or progressive tense. Number third is present perfect, and number fourth is present perfect continuous or present perfect progressive. These are the four subkinds, subtypes of present tense. ठीक है. After that, we came to know about this first one. उसके बाद हमने उठाया था प्रेजेंट टेंस में जो फर्स्ट पार्ट है, ये वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये हमने चूज़ किया था. हमने इसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला देखी थी. हेयर द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये मैंने बताया था. उसके बाद हमने पढ़ा था एग्जाम्पल, I sing a song. Here subject is I and sing is verb, a song is verb object. She sings a song. ठीक. So if you want to write a sentence in simple present tense, this is the structural formula. You have to write first subject and then first form of verb, then object. This is the basic structural form of simple present tense. ठीक. उसके साथ साथ हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था इन सिंपल प्रेजेंट टेंस हम वर्ब के साथ कब यूज़ करते हैं एस और ई एस. ये मैंने आपको बताया था. हम वर्ब के साथ एस और ई एस यूज़ कब करते हैं. ठीक. तो मैंने रूल बताया था, इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज दिस वन, फर्स्ट आई, वी या प्लूरल, उस वक्त हम जो वर्ब होगा, वर्ब के साथ हम उस टाइम पर एस या ई एस नहीं लगाते हैं. इन सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस. इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज फर्स्ट पर्सन आई, फर्स्ट पर्सन वी एंड प्लूरल, at that time we do not use s or es with the verb. Like I have given few examples here. Example first is I eat food. ठीक है. तो यहाँ पर verb है eat, हमने s नहीं यूज़ किया. पहले में पता है कि इसका टेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है. हमने वर्ब के साथ एस नहीं किया बिकॉज सब्जेक्ट इज फर्स्ट पर्सन आई. वी प्ले फुटबॉल, प्ले इज वर्ब, वी हैव नॉट यूज्ड एस हियर बिकॉज द सब्जेक्ट इज वी. चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन, प्ले है वर्ब, चिल्ड्रन के साथ हमने एस, प्ले के साथ एस यूज़ नहीं किया बिकॉज सब्जेक्ट इज प्लूरल चिल्ड्रन. दे गो टू द मार्केट, हमने दे गोज टू द मार्केट नहीं लिखा, वो गलत होगा क्योंकि सब्जेक्ट है दे. ठीक. तो इसको हम यूजुअली बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. अगर वर्ब सब्जेक्ट होगा सिंगुलर,
वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट होगा प्लूरल, वर्ब मस्ट बी प्लूरल। वो हम कैसे बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया। ठीक, उसके साथ हमने पढ़ा था अगर हमें बनाना होगा इन सेंटेंसेस को नेगेटिव, वी यूज़ डोंट। उस टाइम पर हम डू नॉट यूज़ करते हैं इन सेंटेंसेस के साथ। ठीक है, जैसे आई डोंट ईट फूड, वी डोंट प्ले फुटबॉल, या चिल्ड्रन डोंट प्ले इन द गार्डन, दे डोंट गो टू द मार्केट। ठीक, अगर हमें इसी को बनाना होगा अब इंट्रोगेटिव, ठीक है, ये भी यहाँ पर याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव बनाना होगा तब हम यूज़ करते हैं उस टाइम पर डू। ठीक, जैसे अगर मैं इसको बनाऊंगा आई ईट फूड, इसको बनाऊंगा इंट्रोगेटिव हेयर, इसको बनेगा डू आई ईट फूड। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है डू आई ईट फूड। इसको बनेगा डू वी प्ले फुटबॉल, इसको बनेगा डू चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन। ठीक है, तो डू के साथ वी यूज डू इन ऑर्डर टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टू सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंसेस। ठीक, इसके साथ साथ हमने पढ़ा था हम कब एस और ई एस यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये कंडीशन जो है ये वाली, यहाँ पर अगर सब्जेक्ट्स ये होंगे सेंटेंस तब हम एस और ई एस यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर सब्जेक्ट्स ये होंगे, ठीक है, तब हम एस और ई एस यूज़ करते हैं। ठीक, जैसे इफ सब्जेक्ट इज ही शी इट और सिंगुलर, एट दैट टाइम we use एस और ई एस विद द सब्जेक्ट्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस में बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही ईट्स फूड, यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पर इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस ऐड करेंगे वर्ब को। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर इसी तरह से इट लुक्स ब्यूटीफुल, इट इज सिंगुलर, एस बढ़ाया यहाँ पर। इसी तरह से रवि प्लेज क्रिकेट, रवि है सिंगुलर, एस बढ़ाया। ठीक है, ही गोज टू द मार्केट, यहाँ पर गो को ई एस बढ़ाया सिंगुलर बनाने के लिए, बिकॉज सब्जेक्ट इज ही। ठीक, तो अगर सब्जेक्ट ये होंगे तब हम एस या ई एस यूज़ करते हैं। ई एस हम यूजुअली यूज़ करते हैं गो के साथ, और वर्ब के साथ बाकी हम यूज़ करते हैं एस। ठीक, अगर इनको बनाना होगा नेगेटिव तो हम वो डजंट के साथ बनाते हैं। ठीक है, जैसे ही ईट्स फूड, ही डजंट ईट फूड। ठीक, इट लुक्स ब्यूटीफुल, इट डजंट लुक ब्यूटीफुल, और एस काटते हैं नेगेटिव बनाने में। ठीक, अगर हमें इसको बनाना होगा अब इंट्रोगेटिव, तो एट दैट टाइम वी यूज़ डज। ठीक है, उस टाइम पर हम डज यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर है ही ईट्स फूड, तो हम इसको बनाएंगे इंट्रोगेटिव डज ही ईट फूड। और इंट्रोगेटिव बनाने में हम जो एस होता है सेंटेंस में वो हम काटते हैं, डज ही ईट फूड आएगा, ईट्स फूड नहीं आएगा। इट लुक्स ब्यूटीफुल, डज इट लुक ब्यूटीफुल, डज रवि प्ले क्रिकेट, डज ही गो टू मार्केट। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, उसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड हाउ कैन वी मेक देम सिंगुलर और प्लूरल, where we use s es and where we do not use s es। ठीक है, फिर मैंने कुछ सेंटेंस यहाँ पर दिए थे एक्सरसाइज में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रवि ईट्स फूड इन अफर्मेटिव है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अफर्मेटिव है। रवि डजंट ईट फूड नेगेटिव है, डज रवि ईट फूड। ठीक है, इंट्रोगेटिव है। इसी तरह से आई प्ले क्रिकेट, एफर्मेटिव, आई डोंट प्ले क्रिकेट, डोंट आया इसलिए बिकॉज सब्जेक्ट इज आई। ठीक है, तो डू आई प्ले क्रिकेट, ये बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये हमने पिछले लेसन में पढ़ा था। लेट अस गो अहेड एंड सी टुडेज लेसन। आज हम देखेंगे आज क्या पढ़ना है हमें। ठीक, तो अभी तक हमने पढ़ा है इसके बारे में, अभी तक पढ़ा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस नंबर सेकंड उसका जो पार्ट है प्रेजेंट टेंस का वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या हम बोलते हैं इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। जो इसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला दैट इज दिस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसमें से इज एम आर, उसके बाद इंग फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल भी। ठीक है, तो और साथ साथ ऑब्जेक्ट भी लिखते हैं। दिस इज स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक, so I have given few examples here, you can see them, examples are here given। she is eating food, she is subject, is हमने लिया because subject is singular she,
So she is eating food. Eating is the present participle form, ing form of eat. Eating food, and food is object here. This is simple present continuous tense. I am eating food. यहाँ पर I के साथ हम आमतौर पर you am यूज़ करते हैं. Am is always used with I. ठीक है. We are reading a book. ठीक. So these are the three examples of present continuous or present progressive tense. ठीक. So you have to remember this structural formula of present continuous tense. ये आपको याद रखनी है. और is हम यूज़ करते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एक्सेप्ट I के साथ. aim लगता है हमेशा I के साथ. are लगता है when the subject is plural, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा. जैसे यहाँ पर we है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन. ठीक है. दिस इज द structural formula, and these are few examples here. Now if you have to make it negative, if the sentence is present continuous tense and you have to change it into negative, these are affirmative sentences. Present continuous but affirmative. अगर आपको इनको बनाना होगा नेगेटिव, तो यू हैव टू यूज़ नॉट विद द हेल्पिंग वर्ब्स. आपको नॉट यूज़ करना है किसके साथ? हेल्पिंग वर्ब्स के साथ. जैसे यहाँ पर है शी इज़ ईटिंग फूड, तो आपको क्या करना है? इसको आएगा शी इज़ नॉट ईटिंग फूड. यहाँ पर इज़ है हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ नॉट लगाना है. ठीक. इसी तरह से आई एम ईटिंग फूड, नेगेटिव बनेगा आई एम नॉट. ठीक है. हेल्पिंग वर्ब्स के साथ लगाना है नॉट. वी आर रीडिंग अ बुक, वी आर नॉट रीडिंग अ बुक. ठीक है. दीज आर द नेगेटिव सेंटेंसेस. तो अगर नेक्स्ट स्टेप, अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंसेस को आपको बनाना होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. कैसे बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं. जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हम पहले लाते हैं. ये जो हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पर है, इनको हम पहले लाते हैं. जो हेल्पिंग वर्ब्स है इनको हम सब्जेक्ट की पोजीशन पर लाते हैं. जैसे इज़ शी इज़ ईटिंग फूड, इज़ को हमने लगाया शी के साथ, शी की जगह इज़ शी ईटिंग फूड. तो पहले हम लाते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखते हैं बाकी, लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन डालते हैं. तो this is how we can make interrogative sentences from present continuous sentences. ठीक. So this was present continuous tense. इतना समझ आया? Let's go ahead. Number third is present perfect. ठीक है. Number third जो है वो है present perfect tense. तो प्रेजेंट टेंस का है पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस, नंबर थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट. ठीक है. एंड दिस स्ट्रक्चरल फार्मूला इज दिस: सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है. तो यू कैन मेक सेंटेंसेस ऑन योर ओन. जैसे he she has eaten food, yeah, he has eaten food. He subject has, because subject is singular, he eaten food. ठीक है. eaten is the past participle form, या third form of eat. he has eaten food. so ये बन गया present perfect. इसी तरह से I have played football, I have played football. यहाँ पर है I have played football. ठीक. तो हैज़ लगता है जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, हैव लगता है जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा या आई होगा. ठीक. सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. उसके बाद है नाउ इफ यू हैव टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम दीज प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस, यू हैव टू यूज नॉट हियर आल्सो विद द हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव. ठीक है. वहाँ पर हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब होगा, तो उनके साथ आपको नॉट यूज़ करना है. जैसे he has not eaten food. ठीक है. यहाँ पर हमने has या have के साथ not यूज़ करना है, तो that will be the negative form of present perfect sentence. ठीक. उसके बाद है interrogative sentence. अगर आपको अब इनको present perfect को बनाना होगा interrogative, how you can make that? You have to use helping verbs at the beginning. जैसे हैज़ ही ईटन फूड. ठीक है. हैज़ को लाना है पहली जगह सब्जेक्ट की जगह, तो दैट विल बी द इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस. ठीक. सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड एग्जांपल्स आर हियर. हाउ कैन वी मेक नेगेटिव इंट्रोगेटिव? आई हैव शोन हियर. नंबर लास्ट जो सब टाइप है, सब काइंड है ऑफ
प्रेजेंट टेंस वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला, subject plus has have plus been plus inform verb plus object. Examples are given: he has been eating food, he subject has helping verb been eating food, ठीक है। These are the two examples of uh, present perfect continuous. Now if you have to make it negative, you have also you have to use it not with the helping verbs here also, ठीक। जैसे he has been eating food, इसको बनेगा he has not been eating food। सर I have been playing cricket, I have not been playing cricket, ठीक है। If you have to make interrogative भी आसान बनाना है, you have to use helping verbs at the beginning। जो helping verbs है यहाँ पर इनको पहले लाना है, जैसे has he eaten food, ठीक है। has को लाया, इसने लाया पहले subject की जगह, ठीक। तो ये है इसके interrogative form। So this was all about present tense। इसमें हमने पढ़ा प्रेजेंट टेंस में इसके 4 काइंड: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप आपको समझ आया होगा प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस इंशाल्लाह। आई होप you have understood very well. This was all about simple present tense. Thank you very much.